سبسکرائب کرو اور بیل دباؤ۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا، اگرچہ دل کرچی کرچی ہو کر بکھر چکا تھا، مگر محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی جرأت اس میں نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنسو امٹ آنے کے لیے بےتاب تھے، مگر وہ ان پر بند باندھنا نہیں جانتا تھا۔ آخر عاشقی نے یہی تو سکھایا تھا، اپنے جذبات کو سفید چادر میں لپیٹ کر خود کو دوسروں کے سامنے ہنستے ہوئے پیش کرنا، لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ اپنے درد کو دوسروں پر عیاں نہ کرنا۔ آئندہ میری نگاہوں کے سامنے آنے کی جرأت بھی کی تو میں بھول جاؤں گی میں کبھی تمہاری دوست ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتہا کی شفافیت اور جاور پن اتر آیا تھا۔ دیکھنے والے تماشبین تھے اور آگے بڑھ کر کسی کے درد کی دوا کرنے سے قاصر دکھائی دیتے تھے۔ وہ گردن کو ہلکا سا جھکا کر بس اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھوں میں ایک عدد گٹار تھا جسے پکڑنے کی سکت اگرچہ ختم ہو چکی تھی، مگر وہ اس کو تھامے ہوئے تھا۔ اب جا سکتے ہو یہاں سے، اس نے گہری ضرب لگائی۔ بہت چوٹ دی تھی، اپنی صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آخر جرم بھی کیا تھا اس نے، فقط اظہار محبت۔ کیا کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرنا جرم ہے؟ کیا محبوب کے سامنے اپنی عاشقی کو ظاہر کرنا گناہ ہے؟ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، قریب تھا کہ اس کے موتیوں جیسے آنسو زمین میں گر جاتے۔ وہ پیچھے کی جانب ہٹا، قدم ڈگمگائے، مگر وہ سنبھل گیا۔ لب اب بھی نہ ہلے، دل میں کسی کنول کی مانند سمانے والا چہرہ اس کو آنکھیں دکھا رہا تھا اور خاموشی سے وہ کھسکتا نظر آ رہا تھا۔ کسی کی ایک نہ سننے والا اپنے دل کی سن کر آج در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تیار تھا۔ سمیر راجپوت، ہزاروں دلوں کی دھڑکن، سنگیت کی دنیا کا نامور آدمی، اپنی دوست کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اپنا مقام، اپنا مرتبہ سب کچھ بھول گیا۔ جہاں بھر کی نعمتیں ایک طرف اور محبوب کا ساتھ ایک طرف، وہ سائرہ کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس کی آنکھوں میں سمیر ایک پل کے لیے بھی نہیں جچتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنا اس کی مجبوری تھی، مگر آج جب سمیر نے اپنے دل کا حال سائرہ کے سامنے رکھا تو وہ برداشت نہیں کر سکی اور ایک زور کا تماچا اس کے رخسار پر دے مارا۔ عاشقی کا مجسمہ سمیر ہونکوں کی طرح دیکھتا رہا۔ دل کے ٹوٹنے کے بعد کے منظر کی وہ اپنے گانوں میں عکاسی اگرچہ کرتا تھا، مگر درد کی شدت شاید وہ جانتا ہی نہیں تھا، اور آج وہ ذائقے سے، اس مزیدار ذائقے سے آشنا ہو چکا تھا۔ کتنا میٹھا سا ہے درد جو تم نے دیا ہے، مرہم نہ کوئی دوا ہے، مرض عشق ایسا گناہ ہے۔ اپنے ہی گانے کے الفاظ آج اسے اچھی طرح سے سمجھ آ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہی لمحوں کے لیے اس نے وہ الفاظ لکھے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹتا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یکدم اس کی آواز نے ایک بار پھر ان قدموں کو روک دیا۔ ٹھہرو۔ وہ امید کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ اپنی غلطی کی معافی مانگے، شاید وہ کہتے کہ نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، لیکن وہ ایک وقار کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ یہ لو اپنا تحفہ۔ وہ پھول جو اس نے بڑی چاہ سے اس کے لیے خریدے تھے اس کے منہ پر مار دیے۔ پنکھڑیاں ہوا میں بکھرتی چلی گئیں، ہر ٹہنی جدا ہو گئی۔ خوشبو نے فضا کو معطر کیا تھا، مگر درد پر مرہم لگانے کے بجائے جلتی پر نمک کا کام کیا تھا۔ اب آنکھوں کو ضبط میں رکھنا محال تھا۔ ایک شبنم سا قطرہ بہہ ہی نکلا۔ گرفتار جو ہوا محبت میں، عاشقی اس کی سزا ہے۔ محبت کو دھتکارے جانے کے بعد سنگیت کے دنیا کا یہ ستارہ جیسے ڈھل ہی چکا تھا۔ تمام کنسرٹ اس نے ملتوی کر دیے، تمام البمز کو آگ لگا دی، اپنے آپ کو چار دیواری میں قید کر کے بس اپنی عاشقی کو یاد کرتا۔ گھر والے اور دوست احباب اس کی حالت پر اگرچہ فکر مند تھے، مگر وقت کی موجوں پر چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ دل ابھی ٹوٹا ہے اور نیا نیا عشق ہوا ہے، کچھ دنوں بعد دیکھنا پہلے جیسا ہی ہو جائے گا۔ تقریباً سب کی باتوں کا یہی مفہوم نکلتا تھا، مگر کوئی کیا جانے عاشقی کا روگ۔ بند کمرے میں جہاں اس نے جگہ جگہ سائرہ کی تصویریں اپنے پوسٹر کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، انہیں دیکھتا جاتا اور گٹار کے تاروں سے درد بھرا سر بکھیرتا۔ آج بھی وہ اپنی عاشقی کے قصے خاموش در و دیوار کو سنا رہا تھا کہ اس کے دل مضطر نے کسی انہونی کی خبر دی۔ رات کا پہلا پہر تھا، بادلوں سے سجا آسمان کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا، جیسے طوفان آنے والا ہے۔ کھڑکیوں کے دونوں دروازے زوردار آواز کے ساتھ خود بخود کھلتے اور بند ہو جاتے۔ اس نے حسرت کے ساتھ باہر کی طرف دیکھا اور گٹار کو بیڈ پر رکھ کر اس جانب مڑا۔ وہ سفید جینس اور اسی رنگ کی ہائی نیک میں ملبوس تھا
चांद सी रंगत पर ये लिबास खूब जच रहा था। सायरा, तुम ठीक तो हो? उसने आसमान की तरफ देखते हुए खुद कलामी की। जवाब गहरी खामोशी से दिया गया था। दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। बादलों का शोर और रिमझिम उसके सुकून को तबाह और बर्बाद कर रही थी। वो मुट्ठियां भींचे, कभी दरवाजे की तरफ बढ़ता तो कभी बैल्कनी की तरफ। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सायरा किसी मुसीबत में है? उसने अपने गाते हुए पोस्टर की जानिब देखा, जहां उसके ऐन पीछे सायरा खड़ी थी। वो लम्हे भी क्या लम्हे थे। महबूब मोहब्बत से आशना तो नहीं था, मगर साथ तो था। दर्द एक बार फिर उभरने लगा था। मुझे फ़ोन करके पूछना चाहिए। अपनी इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने के बावजूद वो उसके बारे में फिक्रमंद था। फ़ोन मिलाया तो बन जा रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ, मगर क्यों? फिक्र पहले से ज़्यादा बढ़ गई। अब वहाँ नहीं ठहर सकता था। जिस हाल में था उसी हाल में अपने महबूब की खातिर चल दिया। न मौसम की फिक्र, न रात की उस पहर की खबर। समीर, उसको गैराज की तरफ जाता हुआ देखकर उसकी मम्मा ने उसको पुकारा, मगर वो उनके अल्फाज को सुनकर अनसुनी करता हुआ वहां से चला गया। बारिश खूब बरस रही थी। बादलों की गरज ने फजा में मौजूद हर आवाज़ को दबा दिया था। ऐसे में वो तेज़ ड्राइव करते हुए कार को अजनबी मंजिल की तरफ चलाता हुआ ले जा रहा था। सुनसान सड़क जिसके दोनों तरफ बोसीदा से पुराने दरख्त थे, एक वहशत का मंजर पेश कर रहे थे। आंखों में सायरा का चेहरा समाये हुए वो कई बार मोड़ काटते हुए हादसे से बचा था। इस बार भी जब वो सीधी जानिब मुड़ा तो एकदम ब्रेक लगाई। आंखों में एक कसक ने जन्म लिया। सामने सायरा की कार थी जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी। वो बिना सोचे समझे बाहर आया और तेजी के साथ सायरा की कार की तरफ बढ़ा, जो अंदर से बिल्कुल खाली थी। कोई वहां मौजूद नहीं था। वो लम्हों में ही मुकम्मल तौर पर भीग चुका था, मगर उसे अपने बजाय सायरा की फिक्र थी। सायरा इस वीराने में कार छोड़कर कहाँ जा सकती है? तभी बारिश की रिमझिम में उसे पायल की झनकार सुनाई दी। कोई तेजी के साथ भाग रहा था। कदमों की चाप भी उस झंकार में शामिल हो रही थी। वो हैरत से पलटा। ये आवाजें, उसने सोचा, और सामने की तरफ भागा। आवाज करीब से करीब होती जा रही थी। बचाओ, बचाओ। अब मध्यम सी आवाज भी सुनाई दे रही थी। जरा गौर से सुना गया तो वो सायरा की आवाज थी। उसके जिस्म में जैसे एक करंट सा दौड़ गया। भागते हुए उसकी आवाज का पीछा किया। वहां सायरा अकेली भाग रही थी, दुल्हन के लिबास में। उसके पीछे कई गुंडे थे जो उसका ताकुब करने की कोशिश कर रहे थे। समीर ने यह देखा तो उन गुंडों के सामने आ खड़ा हुआ। छोड़ दो, इसका पीछा करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने धमकी दी थी। शनासा आवाज समाज से टकराई तो वो पलटी। समीर को वहां देखकर वो चौंक गई, मगर उम्मीद की किरण नजर आने पर उसकी जान में जान आई थी। मेहंदी के फंक्शन के लिए वो ब्यूटी पार्लर से अकेले घर की तरफ जा रही थी। खराब मौसम के बायस इंजन में पानी भर आया। ऐसे में गुंडे वहां आमौजूद हुए और अपनी जान बचाने की खातिर वो बस भागती चली जा रही थी। अब तू हमें बताएगा हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। 2-3 थे वो लोग और वो अकेला। सब ने मिलकर उस पर वार किए। सायरा ने आगे बढ़कर उन्हें रोकना चाहा, मगर उतने में वहां वलीद आ चुका था। वो उसी की तलाश में आया था। जब फोन बार बार स्विच ऑफ आ रहा था तो उसे भी फिक्र हुई थी। तभी उसे ढूंढने आ निकला था। वलीद, अच्छा हुआ तुम आ गए। वो देखो समीर अकेले ही उन गुंडों से लड़ रहा है, प्लीज उसकी मदद करो, वो मार देंगे उसे। सायरा ने दर्द भरे लहजे में वलीद से मदद की दरख्वास्त की, मगर उसने नफी में गर्दन हिला दी। पागल हो गई हो क्या? वो बदमाश है, चलो यहाँ से। किसी के मामले में बिला वजह नहीं पड़ना चाहिए। वो उसका हाथ खींचते हुए वहां से ले गया और अपनी कार में बिठा दिया। वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। एक कपकपी उसके जिस्म पर तारी थी, मगर निगाहें बर्जिस्ता बार बार पलट रही थी जहां सबीर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। बरसती बारिश में खून भी शामिल हो चुका था और वो उनके सामने बुरी तरह से हार गया था। सर पर लगी चोट के सबब खून बह रहा था। को ख्वाब में मरते हुए नहीं देखा था। हर रात वो आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती थी, मगर तस्लीम करने से इनकारी थी। उसकी मोहब्बत उसका शोहर वलीद था, जो हर पल उसके साथ था। आज वो उसके लिए खास तोहफा लाने जा रहा था। अब बस वलीद आते ही होंगे। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम में गई और 10 मिनट के बाद एक सुर्ख रंग की साड़ी पहने वापस आई। ये साड़ी सुबह वलीद ने ही उसे पहनने को कहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल कंघा कर रही थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का शुबा हुआ। वो पलटी, मगर वहां कोई नहीं था। उसने वहम समझकर अपने ख्याल को झटक दिया और दोबारा कंघा करने लगी। उसे एक बार फिर आईने में कोई चेहरा उभरता हुआ दिखाई दिया। वो पूरी तरह से घबरा गई और पलटकर दबे दबे लहजे में बोलने लगी, कौन है?
कौन है वहाँ? वलीद आप हो? उसने कंगा ड्रेसिंग पर रखा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी और सामने पर्दों को लहराता हुआ पाया। उसने खौफ को दबाते हुए पर्दे हटाए मगर वहाँ कोई नहीं था। उसकी जान में जान आई। लगता है मेरा वहम था। उसने गहरा सांस लिया और पलटी तो खौफ के मारे पीछे की जानिब उछल पड़ी। वहाँ वलीद खड़ा था। अचानक उसे अपने सामने खड़ा देखकर बुरी तरह से चौंकी थी। वलीद! वो बुरी तरह चीखी। हाँ मैं। क्यों, किसी और के आने का गुमान था? उसने हंसते हुए रोमानवी अंदाज में कहा। नहीं, उसने हकलाते हुए मना किया। लेकिन डर तो ऐसी गई जैसे कोई भूत आ खड़ा हो। इस बार वो संजीदा लहजे में गोया हुआ। वो मुस्कुरा दी और दोबारा ड्रेसिंग की तरफ चली गई। आपके होते हुए मुझे किसी भूत वगैरह से डरने की जरूरत नहीं है, उसने पुरमुतमईन लहजे में कहा। इतना यकीन है मुझ पर? उसका अंदाज जुमायने था। धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ा। अपने हाथों में एक बारीक सी डोरी को लपेटने लगा था। खुद से भी ज्यादा वो आईने में देख रही थी। तो आज उस यकीन को भी तोड़ देता हूँ। उसने उस डोरी को सायरा के गले में लपेट दिया और उसे बुरी तरह से कसने लगा। सायरा उस हमले के लिए तैयार नहीं थी और उखड़ती सांसों के साथ अपनी बका के लिए, अपनी जिंदगी के लिए हाथ पांव मारने लगी। सवाल पूछने का वक्त नहीं था और ना कोई जुमला जबान से अदा हो सकता था। सांसें लेना भी दुश्वार हो चुका था। डोरी इतनी बारीक मगर मजबूत थी कि उसके गले की रगों को भी चीर सकती थी। बहुत बार मेरे हमलों से बच गई तुम, मगर आज नहीं, आज तुम्हें मरना होगा। वो जबड़े भेजे हुए कह रहा था। एक जुनून उसके सर पर सवार था। उसने वलीद के चुंगल से निकलना चाहा मगर नाकाम रही। अब उसे अपना आखिरी वक्त मालूम हो रहा था कि आ जाएगा। एक आवाज समाज से टकराई। छोड़ दो सायरा को। आवाज जानी पहचानी थी। वलीद उस आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंका था। क्यों? क्योंकि घर में दाखिल होने से पहले तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर ये आवाज। वो पलटा तो एक बहुत बड़ा सा धचका लगा। सामने समीर उसी तूफानी रात वाले लिबास में खड़ा था। समीर! वलीद की जबान से जारी हुआ तो सायरा भी खांसते हुए पलटी। वहां वाकई समीर था। आंखें हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थी। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। ये कहते ही समीर की आंखों से अजब रोशनी निकली और वलीद उस रोशनी की ताबनाकी को बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं ढेर हो गया। सायरा ये सब समझने से कासिर थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक वलीद का हमला और फिर समीर का वहां आना। समीर तुम जिंदा हो? वो हकलाते हुए कह रही थी और वलीद उसको यूं मरता हुआ देखकर उसका दिल दहल चुका था। मगर जो उसने किया था उसके बाद कोई जज्बा हमदर्दी नहीं थी। आशिकी मरती नहीं है सायरा। मेरा जिस्म तो उस रात फना हो गया मगर मेरी मोहब्बत, मेरी आशिकी तुम्हारे साथ हमेशा रही और तुम्हें इस शख्स के फरेब से बचाती रही। बस इतना कहना था कि वो अक्स, वो चेहरा आंखों से उझल हो गया, धुआं बनकर उड़ गया। सायरा की आंखों में आंसू थे और वो हालात को समझ नहीं पा रही थी। तभी उसका दिमाग चकराया और एक एक बात उसकी समझ में आ गई। वाकया कुछ इस तरह हुआ। एक रात थी। वलीद उसे बचाने नहीं बल्कि उसे देखने आया था। सायरा मरी है या नहीं, मगर समीर ने वक्त पर आकर सायरा पर आई मौत को अपने सर ले लिया। उस रात हमला वलीद ने करवाया था। वलीद दरअसल उसका कज़न था और दौलत के चक्कर में उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सायरा उसके सामने घास नहीं डालती थी। लेकिन किसी तरह उसको अपनी मोहब्बत में फंसाकर वालिदैन की रजामंदी से उसने सायरा से शादी कर ली थी। लेकिन वो उसकी दौलत के लिए उसको मारकर तमाम दौलत अपने नाम करना चाहता था। उस रात जब समीर को मारा गया था, हमला करने वाले गुंडे वलीद के ही थे। इसलिए सायरा के कहने पर उसने समीर को नहीं बचाया। वो जानता था कि उसको बचाकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो उसका नाम नेहाद आशिक जो था। फिर वो दूसरा वाकया सायरा को याद आया। शादी के बाद घर में आग लग गई थी। उस वक्त भी वलीद वहां मौजूद था, लेकिन उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि आग तो उसने ही लगाई हुई थी। वो उसको हादसे के जरिए मारना चाहता था ताकि तमाम दौलत उसके नाम आ जाए, उसके शौहर के नाम यानी वलीद के नाम। वो उसको बचाना नहीं चाहता था, उसको मार देना चाहता था। कितनी कोशिश की थी मगर समीर की आशिकी ने बचने की राहें हमवार की। किचन के पीछे में हमेशा से बंद खिड़की आज गैर मामूली अंदाज में खुद ब खुद खुली हुई थी और खोलने वाला समीर था। याद आ रहा था सायरा को कि खुद ब खुद वो बंद खिड़की खुल गई थी और वो उस आग से बचती हुई वहां से कूद गई थी। फिर एक दिन सीढ़ियों पर किसी ने तेल फेंक दिया था और कुछ देर पहले
वहां से गुजर वलीद का ही हुआ था, मगर वो नहीं फिसला था। जैसे ही सायरा ने अपना पहला कदम रखा, उसका पाँव फिसल गया, मगर किसी ने उस अंदाज में उसे पकड़ा था कि उसे महसूस नहीं हुआ। उसका दुपट्टा बुरी तरह से सीढ़ी के साथ जंगले में फंस गया और वो मुंह के बल गिरने से बच गई। बचाने वाला समीर ही था। उसकी रूह आई थी, हमेशा उसकी रूह उसकी हिफाजत करती थी, कभी खिड़की खोलती थी और कभी उसको सीढ़ियों से गिरने से बचाती थी। और फिर जब वो ड्राइविंग सीट की बेल्ट खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खुलने का नाम नहीं ले रही थी, वलीद उसके साथ ही था। उसे जल्दी करने को कह रहा था। वलीद उसे जल्दी करने को कह रहा था। क्यों कह रहा था उसे उस वक्त वो बात समझ नहीं आई थी। उसका सारा ध्यान बेल्ट की तरफ था क्योंकि वो चीख रहा था। फिर अचानक उसको ऐसा लगा किसी ने पीछे से उसको धक्का दिया है, यानी उसका सर आगे की जानिब झुका दिया है, जैसे किसी ने जोर से धक्का देकर उसके सर को नीचे किया हो। इससे पहले कि वो वापस अपना चेहरा उठाती, एक फायर की आवाज आई। आज उन तमाम राजों से पर्दा फाश हो गया। उसका दिल फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल चाह रहा था वो चीखे, वो चिल्लाए। वलीद की लाश सामने थी, मगर ये आंसू उसके लिए नहीं थे, बल्कि उस आशिक के लिए थे जो मरने के बाद भी अपनी आशिकी निभाता रहा। उसकी रूह उसकी हिफाजत करती रही, कितने हादसात से उसको बचाती रही। गद्दार से शादी की थी, लेकिन जो सच्चा मोहब्बत करने वाला था उसको ठुकरा दिया था। कितने आंसू थे उसकी आंखों में, कितना दिल तोड़ा था उसका। वो ज़मीन पर बैठती चली गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी, क्योंकि उसने मोहब्बत जैसी नेमत की तौहीन की थी। क्यों समीर की आशिकी को बुरा जाना, हालांकि वो तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। तभी तो हर लम्हा उसकी रूह अपनी आशिकी को निभाती रही, उसकी हिफाजत करती रही, और वो पछता रही थी। समीर की रूह जा चुकी थी। वो उसके सामने फिर कभी नहीं आया। हाँ, लेकिन उसके ख्वाब में ज़रूर आया। लेकिन अब क्या फ़ायदा था ऐसे ख्वाबों का। वो समीर को हासिल नहीं कर सकती थी। वो रूह बन चुका था। जिस शख्स से उसको बचाना था वो बचाकर अपनी दुनिया में जा चुका था। उसकी रूह ने वादा किया था सायरा से, जब तक तुम्हारी हिफाजत इस आदमी से नहीं करता हूँ तब तक मैं इस दुनिया में रहूँगा। और इस वादे के साथ वो उसकी हिफाजत करता रहा, तब तक करता रहा जब तक वलीद जिंदा रहा। और जब वलीद मर गया, इबरतनाक मौत, तो फिर वो भी चला गया। सायरा अकेली हो गई, समीर की रूह की यादों में खोई रही।